میں ہوں ڈاکٹر فضا خان اور میں ہوں پاکستان. آج میرے لیے اور میرے ملک پاکستان کے لیے اداسی کا جو اتحاد ایئر ویز ہے جو ابوظہبی بیسڈ ہے، وہاں سے جو انجینئرز ہیں جو ہینگر میں کام کرتے ہیں، انجینئرز ہیں، ٹیکنیشنز ہیں، کچھ 40+ پاکستانی ہیں. تمام جو پاکستانی تھے ان کو اچانک سے ان کی نوکریوں سے برخاست کر دیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ جو اتحاد ایئر ویز ہے اس نے بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو سیک کر دیا اور جانے کا بھی کہہ دیا. امیگریشن آفس بلایا اور اسے کہا لیو دا کنٹری ود ان 48 آورس. اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو شاید اس لیے نکالا گیا ہے کہ وہ پاکستانی نیشنل تھے، ان کو اتحاد ایئر لائن سے ایک ہی دفعہ ان کی نوکریاں ختم کر دی گئی ہیں. انہوں نے 48 گھنٹوں کا ٹائم دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ اپنا وائنڈ اپ کریں اور یہاں سے نکل جائیں. دھچکا لگا ہے ISI کو اور پاکستان کی فوج کو. متحدہ عرب امارات کی جانب سے ان کے جو صدر ہیں، ان کی جانب سے محمد بن زید جو صدر ہیں، ان کی طرف سے براہ راست ایک بہت شدید قسم کا جو ہے وہ شوق لگا ہے. UAE نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ UAE will stand with Israel and India, not with Pakistan. ایسا کیا ہوا اچانک کہ پاکستانیوں کو جبری طور پر وہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ کون سا نام جو ہے وہ حسن ہے، کون سا حسین ہے، کس کا نام علی ہے، کس کا نام عباس ہے، اٹھاؤ اور ان کو جیلوں میں ڈالو، ان پہ تشدد کرو. اور یہ سب کچھ ہوا ہے UAE میں. میڈم انڈیا UAE کے بہت قریب ہوتا جا رہا ہے بلکہ ہمارے لوگوں کو UAE سے نکالا جا رہا ہے. اس وقت جو آپ کا نقصان تو ایران اور اس کی جنگ کی بات کر رہے ہیں نا، امریکہ کی، جتنا نقصان پاکستان میں ایک کنزیومر کا ہو رہا ہے اس کا تو بڑا غرق ہو گیا ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جائنٹ کمپنی UAE کی پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہے. خبریں اور پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک خوفناک حد تک اور خوفناک پروپورشن تک پہنچ گیا. اعلیٰ کیا کہ UAE اپنی نئی صف تیار کر رہا ہے جس کے اندر مودی ہے، جس کے اندر نیتن یاہو ہے، جس کے اندر امریکہ ہے، جس کے اندر UAE ہے. دیکھیے UAE کے اندر جو انڈیا کی انویسٹمنٹس ہے، UAE کی انڈیا کے اندر انویسٹمنٹس ہے، UAE کو چلاتے ہی انڈین پروفیشنلز ہے، سب سے بڑی ایکسپیٹ کمیونٹی ہے وہاں پر. UAE میں 18 لاکھ پاکستانی ہیں تقریباً، اور ایسے صورتحال میں پاکستانیوں کے لیے، پاکستان میں رہنے والے ان کے گھر والوں کے لیے بہت ہی پریشان کن یہ چیزیں ہیں. UAE ناراض تو ہے نا پاکستان سے. 48 گھنٹوں کی بات ہو رہی ہے کہ 48 گھنٹوں کا کہا گیا ہے کہ آپ پاکستان چلے جائیں. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی جو ویزا ہیں ان کو رینیو نہیں کیا جا رہا. UAE کا OPEC سے نکلنا اور OPEC پلس سے نکلنا اس بات کا واضح اشارہ کرتا ہے کہ UAE نے فیصلہ کیا کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے. اس نے عرب دنیا سے بالخصوص سعودی عرب سے بھی دوریاں پیدا کی اور بھارت کی نزدیکیاں بھی ہمیں نظر آتی ہیں وہاں. لیکن میں تھوڑی سی برادرانہ ان کو مشورہ دوں گا اپنے بھائیوں کو UAE میں کہ جناب آپ کی آبادی 1 کروڑ ہے، 10 ملین ہے. 10 ملین میں سے 4.3 ملین ہندوستان کے لوگ رہتے ہیں. ذرا اپنا خیال رکھیں کہ وہ جو آپ کی دوستی بڑی ان کے ساتھ بن رہی ہے انڈیا کے ساتھ، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ بھی اکھنڈ بھارت کا نشانہ بن جائے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا شفٹ آ رہا ہے دنیا کی کنٹریز کے ریلیشنز میں اور الائنمنٹس میں. ایک بہت بڑا شفٹ یہ ہے کہ UAE پاکستان سے بہت دور جا چکا ہے، جبکہ UAE کے ریلیشنز اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ اور بھی اسٹرینتھن ہو گئے ہیں. جنگ بندی کے فوراً بعد بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا ابوظہبی کا دورہ ایسے واقعات ہیں جو متحدہ عرب امارات کی پالیسیوں میں بنیادی تبدیلی کی نشاندہی کر رہے ہیں. یہاں پہ انڈیا کے ساتھ ڈیفنس معاہدے کے بعد عاصم منیر نے پورا ٹل کا زور لگایا چائنا کے ذریعے کہ انڈیا سے ڈسویڈ کیا جائے UAE کو، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ UAE اب چائنا سے ڈسویڈ نہیں ہو رہا. 4 دن کی جو چاندنی تھی، جو 4 دن ہمیں استعمال کرنا تھا لوگوں نے، وہ واہ آپ نے دیکھ لی. ہو سکتا ہے 4 دن اور مل جائے واہ ایسی، لیکن اصل میں جو آپ یہ کہیے کہ جو فنڈامنٹل مسٹیکس ہم نے کی ہیں کہ دوسروں کے جھگڑوں میں جا کے انگلی پھنسائی ہے، سالس بنے ہیں، مطلب اپنے قد سے بڑی حرکتیں جو ہم نے کی ہیں اس کے اب ہمیں نتائج مل رہے ہیں. وہاں پہ پاکستانیوں کو نوکریوں سے بھی نکالا جا رہا ہے. کتنی تعداد ہے لوگوں کی؟ تقریباً کوئی 20,000 کے قریب ہوں گے. دیکھیں UAE ہمارا ایک اچھا بردل اسلامک کنٹری ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اس لیے نکال دیں کیونکہ وہ پاکستان سے ہیں.
ये तो कोई स्ट्रैटेजी ना हुई। यूएई की ग्रोथ में पाकिस्तान का भी किरदार है, क्या इसको इग्नोर किया जा सकता है? नहीं। अब आपने ज़हन में रखना है कि तकरीबन 18 से 20 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त यूएई के अंदर मुलाजमत कर रहे हैं। उसमें से 60 से 70% तो ब्लू कॉलर हैं, जो मजदूरी करते हैं, लेबर करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, भिखारी जो हैं वो हमारी शान है। कुदरत ने अंग्रेजों को हुस्न दिया, यहूदियों को पैसा दिया और हमें 75 सालों से एक नाजुक मोड़ दिया जिससे हम गुजर ही नहीं पा रहे। शुक्रिया हुकूमत पाकिस्तान। पाकिस्तान तकरीबन 7 से 10 अरब डॉलर, पाकिस्तान की टोटल जो रेमिटेंसेज हैं वो 30 से 35 अरब डॉलर बाहर से आती हैं और उन्हीं पर पाकिस्तान मेनली चलता है। उसमें से 7 से 10 बिलियन डॉलर जो तकरीबन है वो यूएई से जो पाकिस्तानी हैं वो कमाकर वापस भेजते हैं। ये कितना बड़ा ब्लो बैक होगा पाकिस्तान के लिए, कितना बड़ा एक पाकिस्तान के लिए सेटबैक होगा अगर यूएई के साथ हमारे रिलेशनशिप मुकम्मल कोलैप्स कर जाते हैं। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो खुद को अरब और पाकिस्तान के साथ जोड़कर पॉलिसी साजी करता था, अब किसी नई समत में चलने की तैयारी कर रहा है। अगर इसका इसराइल के साथ दिफाई ताउन बढ़ता है तो लामोहाला इसमें भारत भी शामिल हो जाएगा। यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो रहे हैं तो उसका नुकसान वहां पर जो काम करने वाले पाकिस्तानी हैं उनको भी हो रहा है कि यार ये क्या है और इसका क्या मुस्तकबिल है और क्या होता है और क्या होगा। सो व्हाट आई बिलीव एंड सी इज कि पाकिस्तानियों का निकाला जाना, उधर से इंडिया बड़ी कुर्बत है, उधर से इंडिया की बहुत कुर्बत है और बड़ी तेजी से इंडियंस को इन्वॉल्व किया जा रहा है। पाकिस्तानियों को ये है कि ठीक है इनको निकालो, पाकिस्तानियों को निकालो, इनका क्या फर्क पड़ता है, इनको कौन पूछने वाला है। जो पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिकल न्यू डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद अब हम उस एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां पे हमें पता ये चल रहा है कि जो अरब कंट्रीज हैं उनकी अलाइनमेंट्स और उनकी शिफ्ट्स हमें नजर आ रही हैं कि वो किस तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का इस जंग के बाद रवैया बदल चुका है। पाकिस्तान के मुआशी हालात से बाखबर होने के बावजूद 3.5 अरब डॉलर के कर्ज की वापसी का तकाजा। ओपेक को तो जो फर्क पड़ेगा वो तो देखी जाएगी, लेकिन यूएई ये कर रहा है इसराइल के कहने पे। इसराइल जो है वो आपको पता है यूएई इस वक्त जो है वो मिनी इसराइल बना हुआ है और छोटू इसराइल छोटू है। वो अरसे से यूएई की जो पॉलिसी है पूरे रीजन के अंदर वो मुख्तलिफ हो गई है और उस पॉलिसी के अंदर जो चेंज आया है, एक तो वो इसराइल के करीब चले गए हैं बहुत ज्यादा, दूसरा भारत के साथ उनकी कुर्बत बढ़ी है, फिर जो इसराइल के साथ वो करीब बढ़े हैं तो जो बाकी गल्फ ममालिक हैं, ये रीजन की कंट्रीज हैं, उनके मुकाबले में उनकी पॉलिसी में तब्दीली आई। मुझे तो लगता है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत बेतहाशा बढ़ाई गई या बढ़वाई गई जी, इसके ये भी भारतीय प्लानिंग का हिस्सा था कि पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिकल वायबल ही ना रहे, उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाए। कौन लोग हो तुसी? ये अगर इंडिया की साजिश थी तो उसमें से जो किकबैक्स और कमीशन है वो इंडिया को जाने चाहिए थे, या आईपीपीज इंडियंस की होनी चाहिए थी। आईपीपीज तो सलमान शहबाज और दूसरों की हैं। ये 14 किलोमीटर दूर बिजली बन रही है 4 रुपए फी यूनिट और यहां पे बन रही है 40 रुपए फी यूनिट। 40 नहीं, असल में 54 रुपए कम अज कम, और ये 80 रुपए तक भी जाती है डिपेंडिंग आप कितनी यूज करते हैं। मैं इसे एक साजिश ना कहूं तो क्या कहूं। तो हो क्या रहा है? एक तो ये कि जो इत्तेहाद एयरवेज है उसने बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को सैक कर दिया। दूसरी खबर ये है कि एक बहुत बड़ी जायंट कंपनी यूएई की पाकिस्तान छोड़कर जा रही है। अच्छा, इसकी भी खबरें डॉन तक में ये न्यूज आई है। इसके ऊपर जो पाकिस्तानी है वो नाराज हो रहे हैं और नाराजगी में बहुत अजीब किस्म की ट्वीट्स भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं है कि अब तकरीबन 18 या 20 एम्प्लॉइज जो काम कर रहे थे इत्तेहाद एयरलाइंस में उनको भी निकाल दिया गया। ये पाकिस्तानी थे। वो लोगों को इसलिए निकाल दें क्योंकि वो पाकिस्तान से हैं। ये तो कोई स्ट्रैटेजी ना हो। कि जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं कि इत्तेहाद एयरवेज हैज टर्मिनेटेड 15 पाकिस्तानी एम्प्लॉइज बेस्ड इन अबू धाबी ऑपरेशंस। ये कहना है रिपोर्ट्स का, मीडिया का, जिसमें जी वो कह रहे हैं कि काफी जो है within 48 hours the employees were terminated and instructed to leave the UAE within 48 hours. Can you imagine?
इसमें 40-40 साल पुराने ऐसे एम्प्लॉयज भी हैं जो काम कर रहे थे इत्तेहाद एयरवेज में, यानी यूएई की एयरलाइन में, और यूएई की एयरलाइन इत्तेहाद एयरवेज ने उनको 48 आवर्स दिए। इत्तेहाद एयरवेज ने पाकिस्तानी एम्प्लॉयज को 48 आवर्स दिए कि निकल जाओ यहाँ से, हम तुम्हें सैक कर रहे हैं और तुम्हारी नौकरी खत्म, टर्मिनेट कर दिया उनको और जाने का भी कह दिया। अब इसी के साथ हम ये देखते हैं कि इंडिया के अभी 2-4 दिन पहले NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल वहां पे पहुंचे हुए थे यूएई में। उससे पहले डॉक्टर जयशंकर जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो यूएई से होकर जो है वो वापस गए, और साथ ही जो है वो अजीत डोवल भी वहां पे पहुंच गए। तो सवाल ये उठना शुरू हो गए कि भाई ये यूएई और जो इंडिया है उसके तो बहुत ज्यादा रिलेशंस हो गए हैं, लेकिन आप देखें कि ऐसी इस सूरत में कि जिस वक्त पाकिस्तान अरब कंट्रीज के जो मीडिएशन है या फैसिलिटेशन है वो ईरान के साथ करवा रहा है, तो ऐसी सूरत में तो पाकिस्तान के ज्यादा रिलेशंस अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन नहीं, ये तो उल्टा हो रहा है। यूएई ने पाकिस्तान को छोड़कर इजराइल के साथ और इंडिया के साथ स्टैंड करने का जो है वो डिसाइड कर लिया। मैं ऐसे 3000 बंदे को जानता हूँ। कितने? 3000 जो इस टाइम जिसकी मेरे पास लिस्ट भी है। अगर हुकूमत पाकिस्तान उसके ऊपर कोई कमेटी बना चाहे, कि जाहिर है कि ये पाकिस्तानी है जिनके तकरीबन 3-3 दहाइयां वहां पर गुजारी हैं, जिन्होंने अपनी कहते ना जीवन की तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया है। वरना क्या थी एमिरेट्स, क्या थी दुबई एयरलाइन, क्या थी इत्तेहाद एयरलाइन, ये एयरलाइंस हम उठाने वाले दुबई को जो आज चमकता दुमकता दुबई है, इसको पाकिस्तानियों का खून और उनकी पसीना शामिल है। तो आप देख लो कि इस वक्त चॉइस सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तो ले लिया आपने सऊदी अरब से, क्योंकि वहां से डॉलर आ गया, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ने क्या काम किया कि उन्होंने जाके इंडिया से डिफेंस डील कर ली। इसराइल के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पहले ही है, और इंडिया के साथ डिफेंस डील सिर्फ और सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि पाकिस्तान ने इतना पैसा लेने के बाद भी आसिम मुनीर ने बेतहाशा वादे वईद किए मुत्तहिदा अरब अमारात से, और तमाम वादे जो हैं वो कोई भी पूरा नहीं किया। वो हमारे दोस्त हैं कामरान यूसुफ, उन्होंने एक खबर दी है कि पाकिस्तानियों को जो है ना वो धड़म से कहा जा रहा है कि उनकी नौकरियां जो है वो बंद की जा रही हैं। कैसे देखती हैं? सर देखें, सबसे पहले तो जो आपने यूएई की बात की है, तो ये कोई आज की बात नहीं है कि वहां से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है या पाकिस्तानियों को वहां काम नहीं मिलता। 2009 की या 10 की बात है। मैं दुबई गई थी, वहां पर मेरे कजन जो है वो उनका घर है, वहां रहते हैं, तो मैं अपनी मदर के साथ गई थी। तो सर वहां पर तो उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तानी एक आया था और उसके इतने नखरे थे। अब आप if you will label entire Pakistani working class with this example, that does not fit here मेरी सेंस में। क्यों हुआ है? ये अहम सवाल था आपका। उसके रीजन ये है कि किसी भी मुल्क में इसराइल का सफारत खाना नहीं है, इनके अंदर है और बहरीन के अंदर है। इन्होंने सफारत खाना क्या बनाया, इवन कि अभी जो 3 दिन पहले की रिपोर्ट आई है उसने तो सबके काम खड़े कर दिए कि जो आयरन डोम था वो सिर्फ इजराइल के अंदर नहीं नसब, वो बल्कि यूएई के डिफेंस सिस्टम में इंस्टॉल था, और उस आयरन डोम को चलाने में कोई और नहीं, खुद इजरायली फौजी तैनात थे।